Good evening and welcome to Vision of Asia, the news you can trust and events that move and celebrate our very own South Asian community. I am Pia Jyoti Khatru coming to you from our ITV Gold studio in New Jersey, wishing everyone a happy 2023. In the community news today we have, in New Jersey, South Asian community welcomed New Year in style with spectacular celebrations. Another incident of mid-air peeing. Man urinated on female passenger's blanket during Paris-Delhi flight. Biden administration proposes massive hike in immigration fees. And we will also be watching interview highlights with world-renowned spiritual leader Sadhguru Sri Swami Anand Ji. Stay with us on Vision of Asia for news in detail right after the short break. New Year's Eve is the time for champagne toasts, resolutions and celebrations with family and friends. In New Jersey, South Asian community welcomed New Year in style with spectacular celebrations. To welcome 2023, American Lalit Kala Academy, ALA Inc., Rajabhatti presented a well-organized, elegant, elaborate, biggest New Year's party in Grand Ballroom at Royal Albert's Palace, Edison, New Jersey on December 31st. More than 500 people attended the celebrations with DJ, dole, lavish dinner, belly dance, face painting for kids, and more to welcome the new year. Here are a few glimpses from the night.
incident of mid-air paying, days after an incident in which a man allegedly urinated on an elderly woman during an Air India flight between New York and Delhi on November 26 last year. Another incident of December 6 has come to light in which a drunk man urinated on blanket of a co-passenger while the Air India flight was on its way from Paris to the national capital, Delhi. The shocking incident took place in a gap of 11 days. इन पे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसे पैसेंजर पे। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन को की तरह कंसिडर होना चाहिए। बड़ी एक ट्रेंड सा हो जाता है। मुझे लगता है कि कोई अगर अच्छा सा सज़ा ना मिले तो लोगों को लगता है कि ये करके बच निकलना बड़ा आसान है, तो वो बार बार उस पैटर्न को रिपीट करते हैं। मुझे लगता है ये पैटर्न को यहीं स्टॉप कर इन पे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसे पैसेंजर पे। और मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की असमत के ऊपर सवाल नहीं है कि उन्होंने लड़ाई की और ये इस तरह से तमाशा किया। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन को की तरह कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लाइट में इस तरह के मामले होते हैं तो उसका मतलब वो इंसान अपने सेंसेस में नहीं है, सोच समझ के नहीं कर रहा है, और वो खतरनाक हो सकता है पूरे फ्लाइट और पूरे पैसेंजर्स के लिए। Biden administration proposes massive hike in immigration fees, including H-1B visas for highly skilled foreign workers, which is very popular among Indian tech professionals. Under the proposed rule published by the U.S. Citizenship and Immigration Services, the application for the H-1B visa increases from $460 to $780 and L1 from $460 to $1,385. The application fee for O1 visas has been proposed to increase from $460 to $1,055. Sadhguru Sri Swami Anand Ji, a world-renowned spiritual leader, also known as India's Nostradamus. I had the privilege to have a chat with him at our ITV Gold studio. Sadhguru Ji is helping and guiding people all over the world with his knowledge and foresight to understand a lot of difficult subjects, as well as give perspectives on what might come ahead. The whole interview will be aired soon, but right now, let's watch some highlights. भविष्य की चिंता अगर हम करेंगे तो हमें भविष्य में बार बार जाना पड़ेगा, और जो कि कहीं है नहीं। भविष्य के चक्कर में हम एक चीज गंवा देंगे, वो है हमारा आज, हमारा वर्तमान। अगर हम वर्तमान को ही खो देंगे तो भविष्य बनेगा कैसे? क्योंकि भविष्य कुछ और नहीं है। भविष्य वर्तमान की ईंट पर खड़ा वो गुंबद है जो हमारे आज से ही पनपता है, आज से ही उपजता है, आज से ही निकलता है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप सिर्फ अपने वर्तमान पर फोकस करें, अपने आज पर ध्यान दें।
खुद को योग्य बनाए, खुद पर काम करें, किसी और की न फिक्र करें न चिंता। कौन क्या कह रहा, कौन क्या कर रहा, कौन क्या बता रहा, कौन क्या सुना रहा, आप ये सब सुने ना सुने, लेकिन इन सब के बीच आप अपनी जरूर सुने, क्योंकि जो मैंने बताया कि आप सबके भीतर अपार क्षमता है। अगर हम भविष्य के चक्कर में पड़ेंगे तो हम अपने आज को गंवा देंगे। तो बेहतर है कि आप अपने आज को संवारें, अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को निखारें। भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, बेहतर और अद्भुत हो जाएगा। तो स्वामी जी, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि नकारात्मक परिस्थितियों का लोग कैसे सामना करें? नकारात्मक परिस्थितियां हैं क्या? ये दरअसल सकारात्मक की तरफ बढ़ने का मार्ग है। बिना नेगेटिव के पॉजिटिव होता नहीं है। जब नेगेटिव नेगेटिव मिल जाता है, जब नकारात्मक नकारात्मक मिल जाता है, तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ये घनात्मक बन जाता है। ये नकारात्मक परिस्थितियां जो होती हैं, ये आपको बेहतर बनाने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। ये वो सोपान है जो आपको तराशती हैं, संवारती हैं और निखारती हैं। जिसके जीवन में नकारात्मक क्षण नहीं आते हैं, वो जीवन में आसमान को नहीं छू पाते। नकारात्मक परिस्थितियां दरअसल सकारात्मक यानी सुख के समय की सर्जक हैं। ये तो सीखने का काल है। आध्यात्म की बात अगर छोड़ दें, ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष में हर नकारात्मक काल के बाद सकारात्मक काल आता है। हर शनि की दशा के बाद में एक बृहस्पति की दशा आती है, या बुध की दशा आती है। हर राहु की दशा के बाद में बृहस्पति की दशा आती है। यानी खराब समय के पश्चात एक अच्छा समय अपने आप आता है। जैसे एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, वह सीमित सुविधाओं में रहता है, लेकिन जब वो काबिल बन जाता है तो वो बड़े हाउस या बड़ी सुंदर जगह का वर्ण कर लेता है। बस इसी प्रकार से जब समय विपरीत हो, आपको घबराना नहीं है, आपको अपने आप पर काम करना है। आपको खुद को संवारना है और बेहतर बनाना है। सकारात्मक समय आपका चरण चुंबन करने लगेगा। बहुत आसान सा ये सूत्र है। गुरुजी, ये लाइन बहुत सुनने में आती है कि अवेकन योर सोल। जहाँ भी देखो सब कहते हैं अवेकन योर सोल। तो स्वामी जी, हम अपने अंतर आत्मा को कैसे जगाएं और कैसे उसे उबारें? इसके लिए आपको कहीं जाना होगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि मंदिर में जाओ। आपने कभी सोचा है मंदिर क्या है? मंदिर में भगवान रहता है, तो मंदिर क्या है? मंदिर यानी मन के अंदर। ये जो जिस्म है, हमारी देह है, यही जिस्मानी मस्जिद है। इसी में खुदा रहता है, इसी मंदिर में भगवान रहता है। यानी आपको अपने भीतर जाना है। आज आपको थोड़ा टेक्निकल पक्ष बता देता हूं। हमारी जो देह है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केंद्र भी हैं, ऐसे सेंटर भी हैं जो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देते, बस महसूस होते हैं। जैसे कि हवा दिखती नहीं है, महसूस होती है। सुगंध नजर नहीं आती, पर उसका एहसास होता है। घृणा, प्रेम, ये सारी अनुभूतियां आप इनकी सुगंध का अनुभव कर सकते, लेकिन इनको देख नहीं सकते। इसी प्रकार से हमारे भीतर 7 चक्रास हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। ये जो टॉप का जो चक्र है सहस्त्रार, जो कि यहाँ पर सर के ऊपर होता है, इसके ठीक नीचे दोनों आंखों के मध्य एक चक्र है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आज्ञा चक्र, ये आपका वो सेंटर है जहां पर अगर आपने खुद को समेट लिया, खुद को लपेट लिया, आपने खुद को जहां पर इकट्ठा कर लिया और धीरे धीरे उस चक्र को एक्टिवेट कर दिया, सक्रिय कर दिया, तो आप वो बन जाते हैं जो आज्ञा दे और पूरी हो जाए। यानी आपकी आज्ञा वहां पर पूरी हो जाती है। यानी आप मानव शरीर में आप महामानव हो जाते हैं। बहुत सरल है, सहज है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप कहेंगे कि मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन।
लेकिन मेडिटेशन का मतलब आप समझते हैं, लोग समझते हैं, संसार समझता है कि ध्यान का अर्थ होता है आंख बंद कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ध्यान का अर्थ आंख बंद कर लेना होता तो संसार में जितने ब्लाइंड लोग हैं, जितने नेत्रहीन लोग हैं, सब ध्यानी हो जाते, ज्ञानी हो जाते, पूर्ण और परिपूर्ण हो जाते। नहीं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की बंद आंख को खोल लेना, यानी अपने भीतर के हिडन सेंसेस को जगा लेना, जागृत कर लेना। ये कैसे होगा? अमूमन लोग मेडिटेशन का मतलब समझते हैं कि आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देना या दोनों आंखों के बीच में कहीं पर फोकस करना। ये इनकम्प्लीट है। मेरा जो मार्ग है शब्द योग का, शब्द योग ये सिखाता है कि इसके 3 पहलू हैं। सुमिरन यानी सिमरन अर्थात स्मरण, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसके बाद ध्यान और भजन। ध्यान कहते हैं देखने की क्रिया प्रक्रिया को, जो अपने भीतर की आंख से देखने की क्रिया है, दृष्टा बनने की क्रिया है। और दूसरा भजन। भजन का मतलब ये बाहरी गाना गाना नहीं, भक्ति गायन नहीं। भजन का अर्थ है अपने भीतर के कान से उस कॉस्मिक साउंड को सुनना जिसने सब कुछ रचा है, पूरी सृष्टि जिसने बनाई है, जिसको बाइबल के जॉन 2 में वर्ड कहा गया है। वहां साफ साफ लिखा है, इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। हमारे कहते हैं कि आकाशवाणी से वेदों की ऋचाएं प्रकट हुई। वो भी कहते हैं कि आसमानी आवाजों से, आसमानी आवाज से कलमा और आयतें उतरी। सारे धर्म और मजहब, हैरानी की बात है कि कमोबेश एक ही बात कहते हैं, एक तरह की ही बात कहते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी नादानी में अनजान रह करके हमने इसमें भेद और विभेद कर डाले। तो बहुत सरल है अपने भीतर जाना, पहले एक प्रतीक चिन्ह के हिसाब से स्मरण करना। तो क्या स्मरण करना? एक प्रचुर प्रकाश जिसमें बहुत रोशनी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। शुरू में आपको इमेजिन करना है, बाद में धीरे धीरे वो प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा। सुमिरन यानी सिमरन अर्थात स्मरण, पुकारना, आवाज देना अपने भीतर बैठे प्रभु को, अपने अंदर बैठे खुदा को, उस वाहिगुरु को जो हम सबके साथ है, हम सबके भीतर ही है, हर क्षण हर पल। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है। इसके पश्चात ध्यान। ध्यान में आपको दोनों आंखों को, जो बाहर की आंखें, इनको बंद करके यहां पर एक थर्ड आई भी है जो धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाती है। जरा सी कोशिशों से, थोड़े से अभ्यास से ये सक्रिय हो जाती है। और जब आप इसे सक्रिय कर लेते हैं तो आपके भीतर ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं कि आप चकित रह जाते हैं। इसमें न कोई धोखा है, न कोई इसमें कोई छलावा है, क्योंकि इसके लिए आपको फीस नहीं देनी, कहीं जाना नहीं है। आपको अपने घर में ही बैठना है, या जहां पर भी आप आराम से बैठ सकें, अपने घर में, अपने लिविंग एरिया में, अपने बेडरूम में, अपने बैकयार्ड में, या जहां मर्जी हो वहां। कहाँ बैठे? जहां मर्जी हो वहां बैठे। आप भूमि पर यानी जमीन पर बैठे, किसी आसन पर, अपनी चेयर पर बैठे, काउच पर बैठे, बेड पर बैठे, और ये प्रैक्टिस करते रहें। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो एक चीज होगी कि आपके भीतर एक बिंदु निर्मित होगा, दोनों आंखों के बीच में आपको एक ब्लैक स्पॉट सा दिखाई देगा, और धीरे धीरे आपकी मानसिक क्षमता विकसित होती जाएगी। आप अंतर से, अपने भीतर से मजबूत होते जाएंगे और एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान से फायदा क्या होता है? जैसे मान लें कि ये मेटल का पीस है, तो क्या हम इसे इस हाथ में होल्ड कर सकते हैं या कट कर सकते हैं? नो, नो वे, नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि हमारी और इस मेटल की सारी ऊर्जा, एनर्जी ये पूरे सरफेस पर ये बिखर जाती है। अगर हम इसे शार्प कर दें, इसे नाइफ बना दें, या इसे तलवार बना दें, चाकू बना दें, तो अब ये हथेली तो क्या, ये पत्थर और स्टील को भी काट देगी। बस यही तो है अर्जुन की एक आंख, अर्जुन की
जो अर्जुन ने देखी थी मछली की एक आंख, बस यही है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को एक बिंदु पर लाना, एक पॉइंट पर लाना, और धीरे धीरे आपका ब्रेन फोकस हो जाता है। फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, चाहे लौकिक यानी संसार का या पारलौकिक इस संसार से परे का। इसका तीसरा हिस्सा है भजन। भजन का अर्थ है उस कॉस्मिक साउंड को, भजन का अर्थ है उस ब्रह्मांडीय नाद को जिसको कॉस्मिक साउंड कहते हैं, उसको सुनना। कैसे करना है? इसके लिए आपको अपने बाहर के दोनों कानों को विराम दे देना है, आराम दे देना है। यानी इसको इस तरह से बंद करके, आंख बंद करके, यहां आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ बढ़कर सुनना है। Pramukh Swami Maharaj inspired millions around the world to live a life infused with love, peace, harmony, faith in God, and service to humanity. Now you can watch highlights of Pramukh Swami Maharaj Centennial celebration from Ahmedabad, Gujarat, every night at 9 p.m. Eastern on ITV Gold till January 18th, 2023. And from the news on entertainment at ITV Gold, enjoy family movie night this Friday, 8:30 p.m. Hindi comedy film Masti Express starring Rajpal Yadav and Johnny Lever. Saturday, 1 p.m. Eastern, watch Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan and Kareena Kapoor in Main Prem Ki Deewani Hoon. And book your blockbuster Sunday at 3 p.m. Eastern for crime thriller Sahib Biwi or Gangster 3. And that's a wrap on Vision of Asia tonight. You can send us your suggestions and community news that you would like us to cover for our print and television coverage at events@itvgold.com. Or you can also send it to me at pi@itvgold.com. Follow us on our Facebook handle at ITVGold. Subscribe to our YouTube channel and pick up a free copy of Desi Talk if you are in the tri-state or in the Chicago area for community news, entertainment, and events in US. You can also read the News India Times newspaper online at www.newsindiatimes.com or subscribe to the hard copy by calling 212-675-7515. This is Pia Jyoti Khatru signing off.